Okay. So one is R and another is R Studio, right? So we already discussed in too much detail what is R Studio. I'll just take a brief introduction of everything and then I will move to uh, the practical part. So basically, R is, we know that it is a free open source programming language for statistics, for data analysis, and for visualization. And in our course also, we do this statistics part we learn the basics. We will be doing data visualization and data analysis also, right? And our studio is an environment on which we work. We can work on R also, we can work on our studio also, but we prefer to work on our studio because it makes our things easy. Instead, R gives just one window if we work on R. So it is typically for programmers who are very pro to this programming language. But as beginners, it is good for us if we work on R Studio. I'm just opening R Studio. Okay. So when you will be opening this, we also call it as IDE, Integrated Development Environment. So when we open this R Studio, as you all know, that we get these 4 windows. Right? Now, sometimes what will happen when you will open this R Studio, can you all open along with me? When you will open this R Studio, instead of these 4 windows, you will get 3 windows like this. It might be possible that you are getting these 3 windows. So nothing to worry about. It's just that you have to minimize this option. And you will get 4 windows. So this is the interface of RStudio. You can minimize or maximize any window as per your convenience. Now, the first window is, I hope you have all downloaded it. Okay, I sent you a video regarding that. So when we open, just give me a moment. Yes, Vita. Table you have. Give me another table. Okay, ask Papa to give me. Okay, so uh, when we open this, हमारी बात हुई थी साइबर क्राइम में। उन्होंने हमें स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं, नोटिस वगैरह भी उन्होंने इशू करे हैं आपको, कोटक महिंद्रा बैंक ऑफिसर को। तो उसके बारे में पूछा है कब तक खुल जाएगा अकाउंट। आज ही करिए वैसे। okay, now just come to my screen. Okay. So on this screen, you see 4 windows. The first window is script editor. Can you see this window, the first one? Yes. Okay, you can unmute yourself. Good. Okay, so this is the first window. I'll just expand it for you. If you want to expand, you can press Control and plus. This window will get bigger. Okay, it will zoom in. If you want to zoom out, you can press Control minus. If you're using Mac, then it is Command plus or Command minus. Okay, now this first window I'll be working on. This is called Script Writer. Okay, here we write our script. We can save our script for later use and we can edit it. We can run it from here.
The second is console, where the actual execution takes place, the calculation part takes place. We can also write in console. This is just similar to the R window, sorry, R, uh, where we work. So I told you there we see only a single window. So that the window is this console. We can enter here also, but the constraint here is you cannot save your work. Fine. You cannot, there are few constraints. So if you want to do just smaller things, you can use this window. Otherwise, it is better to use script editor. Okay. Here we write and we can save our work. Next, third window is environment. It is called his. It gives us two major functions. One is importing data set. Here from here we can import data set. And the second thing is we can see history of our variables, of our data set, or whatever we have used in our um, calculations. We can see here the history. The last part is very important. It gives us two major things. One, the plots. I talked about data visualization. हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स. ठीक है, तो वो ग्राफ्स वगैरह जो है वो यहाँ पे बन के आते हैं. वो जो बन के आएंगे उनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे हम अपने जहाँ जिस डॉक्यूमेंट में हम उसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं. सो फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे एक तो हमारे प्लॉट्स बन के आएंगे या ग्राफ्स या डायग्राम्स, वॉट एवर वी आर मेकिंग. एंड द सेकेंड मेजर important thing what we can do here is packages. So to run few commands, we need packages. And these packages sometimes are not inbuilt downloaded. We have to download it. And they are totally free of cost. I will show you the way how we can download it. But two main things we work, we use this window for two main purpose. One is for plots, this you can option you can see, and another is packages. Okay. Now, let me start. So before starting, I would like to tell you one thing. That, okay, I hope you all have opened your window, right? Now, when you open your window, go to the fourth window. Okay. Now, what are we doing? We are setting our working directory. Why do we need to set our working directory? हमें सेट करनी होती है वर्किंग डायरेक्टरी ताकि हम जो भी काम कर रहे हैं हमारा वहां पे सेव हो जाए. ठीक है. एंड इन द असेसमेंट पार्ट ऑल्सो आई विल बी सीइंग योर वर्क, whatever we have done in the class, whatever assignments I will be giving you. So everything we need to save at one place. For that, we need to set our working directory. And that was the only reason I asked you to save the file which I have sent you on the desktop. Okay, in a folder. So we will be choosing that folder only so that our work also gets saved into that folder. Okay, so now this was just the recap of what we have done earlier. Now we are starting actually today's lecture. Okay. In fourth window, can you see? There is a fourth window in files option. It might be, you might find your window with some other option open, but we have to go to file. There is first option, file. When we go to this file, you will find on the right side, right corner, 3 dots over it. I hope it is visible to everyone.
Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. These three dots. As you say, when I am just putting my cursor on these three dots, it asks me, don't write on the screen, please. It asks me, it says, go to directory. So I clicked on go to directory. Directory में जाने के बाद, you will find the folder where you want to save your work. I am, for example, I want to save my work in this folder, day-wise R classes. Okay, or for say I want to save it here, R software. Okay, I am opening this. Ma'am, Yes, can you please repeat? yes, please. Okay, so what we are doing, we are setting our working directory. वर्किंग डायरेक्टरी क्यों सेट करते हैं? ताकि हम अपना सारा काम जो है वो एक जगह पे सेव कर पाए, जो भी हम कर रहे हैं वो हमारा उस फोल्डर में. सो द फाइल विच आई हैव सेंट यू, आई आस्क्ड यू टू सेव इट इन अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप. ओके, उस डेस्कटॉप पे वो सेव करने से क्या होगा, हम वही उसी को ही अपनी डायरेक्टरी, मतलब वर्किंग डायरेक्टरी उसको सेट कर लेंगे. मतलब हम चाहते हैं कि हमारा काम सारा वहीं पे सेव हो. ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर दैट, वी हैव टू गो टू द फोर्थ विंडो. फोर्थ विंडो, फोर्थ विंडो में ऊपर अगर आप देखोगे, देर आर सो मेनी ऑप्शंस गिवन. फाइल्स, प्लॉट्स, पैकेजेस, हेल्प, व्यूअर and presentation. Okay, so we will go to files. My file is already open. You can open yours. File open किया. When you will click on the file, आप right side पे जाके देखेंगे, there are 3 dots. इस 3 dots को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा. It will show you where do you want to save your work. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना काम डेस्कटॉप पे वो वाली फाइल रखी थी जो मैंने भेजी है. सो यू चूज दैट फोल्डर ओनली. अच्छा, वो फाइल नहीं होनी चाहिए, ये फोल्डर होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि वो सारा काम जो है एक फाइल ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देगा वहां पे उस फोल्डर में. सो आई वांटेड माय फाइल टू बी क्रिएटेड इन दिस folder, R software. So I am choosing this R software and I open it. जो भी आपके उस फोल्डर में होगा वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी फाइल्स. ओके, अगर आपने एक फाइल सेव करी हुई है उस फोल्डर में तो एक आ जाएगी. अगर कुछ भी नहीं सेव किया हुआ तो यहाँ पे एम्प्टी आएगा. ओके, नाउ when this option comes, can you see there is a blue star kind of thing where I'm putting my cursor and it is showing more file commands. There is a drop down arrow. ठीक है, किसी किसी का यहाँ पे more भी लिखा हो सकता है. So you will find this kind of drop down arrow. Once you click on this drop down arrow, you will find these options. Okay, so what I am doing is set as working
डायरेक्टरी। ओके, और जैसे ही आपकी वर्किंग डायरेक्टरी सेट हो जाएगी, यहाँ पे आपको कमांड कंसोल में आपको सेकेंड विंडो में आपको दिख जाएगा कि आपकी ये डायरेक्टरी जो है वो सेट हो गई है। अनलेस यू गेट दिस written command here, your working directory has not been set. So once this is visible here in this console, that means your working directory has been set. देखो मैंने चूज क्या किया था अपने डेस्कटॉप पे, आर सॉफ्टवेयर, है ना। आप जो चूज करोगे, जो पाथ चूज करोगे उसको दोगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। Okay. So there are two ways to set this directory. This is point and click method. Another method is that you have to write this command here in script writer, get wd, path दोगे उसको, फिर set wd, फिर path दोगे और run करोगे। ठीक है? So it is better to set working directory from here, from the fourth window. It is comparatively easy because there is one twist here. When you set your directory from the first window, you have to change the slashes. When you will give the path will come in forward slashes. I'm just telling you, we are not going through that method. We'll just do from point and click. But मैं आपको बता रही हूँ, you should know about. मैम Yes. मैम हम वर्किंग डायरेक्टरी क्यों यूज करते हैं? वर्किंग डायरेक्टरी क्यों सेट करते हैं? क्यों? यस मैम। ताकि हम जो भी काम कर रहे हैं हमारा वहां पे सेव हो जाए, एक अलग से फाइल बन जाएगी जिसमें हमारा काम सेव होता जाएगा। दो वी हैव टू सेव इट लेटर व्हेन वी क्लोज दिस विंडो, इट विल आस्क अस यू वांट टू सेव, सो हम सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही सेव हो जाएगा। ओके, in the practical examination also, you have to show your results, whatever you will do. So where will you show? Okay, so uh, that is why we set the working directory, because it saves our work there. ठीक है, सो मैं बता रही थी कि जब आप यहाँ से पाथ देते हो, उसको मैनुअली कमांड देते हो, तो स्लैशेस जो है वो फॉरवर्ड स्लैशेस आते हैं। कैन यू सी हियर? स्लैशेस हैं दो। सो जब उसको पाथ हम वहां से देते हैं, चूज करते हैं अपने लैपटॉप से, सिस्टम से, वो फॉरवर्ड स्लैश होते हैं। हमें उसको मैनुअली बैकवर्ड स्लैश करना पड़ता है, बिकॉज आर जो है वो बैकवर्ड स्लैश एक्सेप्ट करता है। Okay, so though we are not going through that method, but as of now, what we have learned how to set our working directory. Is it clear? सबको वर्किंग डायरेक्टरी यस सेट करने आ गई? यस मैम। Anybody having any confusion? चलिए आगे। हो गई ना सेट वर्किंग डायरेक्टरी? ठीक है। Now there is let me tell you, there are three methods to enter data in R. ठीक है। Now, first method is we can put manually. जैसे just see in the script writer I am writing 2 plus 3. I am putting my data manually. Can you see? अच्छा, अब यहाँ से सीखते हैं हम R को करना कैसे है। मैंने यहाँ पे लिखा 2 plus 3.
I can keep my cursor anywhere in the beginning, at the end, or in the middle, anywhere. But to execute this command, what I have 2 plus 3 क्या आंसर देगा? 5 आंसर देना चाहिए, बट मैंने 2 plus 3 कर दिया, और अगर मैं इसको सिंपली एंटर कर देती हूँ कुछ भी नहीं होगा. ठीक है? Anybody knows what do we have to do? If I want the answer of 2 plus 3 here, how will I get the answer? मैम प्लस इक्वल टू Plus equal to? नहीं, देखो यहाँ पे ना ऊपर देखोगे 2 ऑप्शन होंगे, ग्रीन कलर का एरो बना होगा. मैम ग्रेटर देन एंड हाइफन. नहीं, 2 plus 3 का आंसर चाहिए, 5 आना चाहिए. कैसे दिखाएगा? ये देखो ऊपर यहाँ पे एरो है ग्रीन कलर के. ठीक है, इस एरो को प्रेस करते हैं. इस एरो का मतलब होता है रन दिस कमांड. हर लाइन को आपको रन करना पड़ेगा. अगर आपने रन नहीं करी तो आपका आउटपुट नहीं आएगा. टू गेट द आउटपुट वी हैव टू क्लिक दिस रन. आउटपुट कहाँ आता है? कंसोल में. कैन यू सी? कंसोल में आंसर आ गया 5. If I'm writing 10 plus, okay, I can write here also. I'll tell you all the alternatives. I'm writing here 10 multiplied by 20. How will I get the answer of this? I know the answer is 200. But how will I get the answer? कैसे करेंगे आंसर इसका? हम रन पे क्लिक करके. रन पे कंट्रोल क्लिक इंटर. करके. और आंसर आएगा कहाँ पे? कंसोल विंडो में. ठीक है. Now, there is one more alternative to it. If we don't want to go to the touchpad again and again, what we do, I'm doing 300 divided by 3. I want to run this command. What I will simply do, control plus enter. Only enter करने से तो नहीं आ रहा. ठीक है, वो तो कर्सर नीचे चला जाता है. So I have to do control plus enter. और अगर आप मैक यूज करते हैं तो कमांड प्लस एंटर. कैन यू सी द आउटपुट हियर? Yes, ma'am. So this is how we run our commands. Okay. Now, as I told you, we can write in script writer also, script editor, or we can do it in directly in console also. There you don't need to run. Okay. One very important thing, after you know, every 5-10 minutes or after working for some time, you will find your console cramped. बहुत सारा भर जाएगा वो. ठीक है. So if you want to clean it, there are 2 ways to clean it. Can you see this broom here? In this window only, console Yes, ma'am. window, at the end there is a broom. Okay. Either you click this or you can do, क्या कर सकते हैं? Control plus L. कंट्रोल प्लस एल. Yes. Okay. Clear हो गया हमारा. Now, suppose I'm writing in console. I'm just showing you how to write in console also. For example, I want to do 576 minus 234. Okay. Now, I don't need to press control plus enter here. If I just click enter, it will give me the output. Okay. But this work cannot be saved. That's it. It's like a kind of rough notebook. ठीक है, जैसे आप रफ काम करते हैं, रफ वर्कशीट. This is a kind of your fair notebook.
जहाँ पे आप सब अच्छे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं. ओके, इज दिस क्लियर? सो सब अपने हाथ से एक बार ये करके देख लीजिएगा. ठीक है. ओके. नाउ ओके, वी वर ऑन हाउ डू वी एंटर डेटा, है ना. हमने अभी क्या देखा कि एक डेटा हम मैन्युअली एंटर करते हैं. ये हमने मैन्युअली एंटर किया. ओके. नाउ लेट अस सी द सेकंड thing. How do we enter data in R? Data is already available in R also. Okay. So there is another way to work on data set. There are data sets like iris. अच्छा, मैं लिखती हूँ, आपको उससे पता चल जाएगा. So we are on the second option. I will simply write, just look into my script editor. Whenever I am writing something, you always have to focus on my script editor. Okay. Data. जैसे ही मैंने डेटा लिखा, you will find a list of drop down menu. ठीक है. अब मैं यहाँ पे सिर्फ डेटा कर रही हूँ. And it is always better if you giving any command, always better to pick from the drop down menu, because वो गलत नहीं होता फिर. ठीक है. अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमारा R जो है वो केस सेंसिटिव भी होता है. ओके, आई एम सिंपली क्लिकिंग ऑन डेटा. नाउ हमारे पे बहुत तरह के डेटा होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आइरिस करके होता है. ठीक है. आइरिस करके है, एम्प्टी कार्स है, और क्या क्या होता है, एयर क्वालिटी का डेटा है हमारे पास. सो ये कुछ कुछ डेटा सेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एम्प्टी कार्स. अच्छा, डेटा, जैसे ही आप डेटा चूज करोगे ऑटोमेटिकली एक ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे. आई एम राइटिंग इट अगेन. डेटा, जैसे मैंने यहाँ से चूज किया, कैन यू सी these brackets? Now I want empty cars data set. Okay. How will I run this command? मैं इस डेटा सेट को ओपन करने के लिए मैंने कमांड दी डेटा empty cars. How will I open this? How will I run this command? कंट्रोल एंटर. कंट्रोल एंटर या रन. देखो यहाँ पे ब्लू आ गया. दैट मीन्स हमारा डेटा सेट ये ओपन हो गया. अब डेटा सेट हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, और ये जो इंपोर्ट हो गया यहाँ पे आ गया. यू कैन सी इन द थर्ड विंडो विच इज एनवायरमेंट, वैल्यूज आ गया, एम्प्टी कार्स. अब आप सोचोगे कि ये दिख ही नहीं रहा है डेटा, कैसे दिखेगा? आई हैव टू गिव अनदर कमांड विच इज व्यू. ठीक है. व्यू में क्या करना है मुझे? एम्प्टी कार्स. मुझे ये डेटा फाइल देखनी है. मैंने बोला आपको, जब भी आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से उठाओगे तो देर आर चांसेस कि आपकी कमांड रन, देर आर लाइकली चांसेस कि आपकी कमांड रन करेगी ही. ठीक है. जब हम मैन्युअली लिखते हैं तो कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं. ओके. मैंने डेटा सेट लिया, उसके लिए लिखा था डेटा एम्प्टी कार्स. अब मुझे उस डेटा सेट को देखना है. सो व्हाट कमांड हैव आई गिवन? व्यू एम्प्टी कार्स. कैन यू सी? आ गया.
ये ऑलरेडी इसमें था। देखो ऊपर देखो, दो फाइल्स पे, एक हम जिस पे लिख रहे थे उसके साथ इमीडिएटली उसने एक और ओपन कर दी, डेटा फाइल, डेटा सेट. And if you see now in the environment window, you can find empty cars. It says it has 32 observations of 11 variables. ठीक है? Now, I want to see, for example, the इसमें अभी पूरा visible नहीं है. So I just want a glimpse of it. If I give a head option, head command, किसकी? हमें बार बार लिखना होगा. हेड तो हम लिख रहे हैं, व्यू हम लिख रहे हैं, बट किसका? एम्प्टी कार्स का. ओके, आई एम रनिंग दिस कमांड. जब हम हेड कमांड देते हैं, सो ये क्या करता है, हमें फर्स्ट 6 रोज दिखाता है. बहुत बड़ा डेटा था, बट ये हमें फर्स्ट 6 रोज दिखाता है. कैन यू सी? Yes, ma'am. Next, now if I want to see the column names, I want to check the column names कि क्या क्या names है. यहाँ पे देखो लेफ्ट में कार्स के नाम है और ऊपर कॉलम्स है वेरिएबल्स कि उसका डिस्प्ले, उसका वेट, उसका गियर. ठीक है? सो आई वांट टू सी द नेम्स ऑफ कॉलम्स. सो आई विल क्लिक ऑन कॉल नेम्स. अब मुझे कॉल नेम्स किसके चाहिए? एम्प्टी कार्स के. I will run this command. Can you see in the output window? Yes, ma'am. It is showing me the column names. कई बच्चों का ना एरर, यहाँ पे रेड एरर दिखाएगा. ठीक है, कभी कभी, बट उससे घबराना नहीं है. It just tells you that what action you need to correct. ओके, कहाँ पे? सो कॉल नेम्स आ गया हमारा. हेड से क्या दिखाया उसने? फर्स्ट 6 रोज दिखा दी. कॉल नेम से उसने कॉलम के नेम्स दिखा दिए. ठीक है? नाउ आई वुड लाइक टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा सेट. स्ट्रक्चर ऑफ डेटा सेट जब हम देखते हैं तो उसके लिए फंक्शन होता है हमारे पास str. किसका देखना है? एम्प्टी कार्ड्स का. I am running this command. देखो, now it is giving us the structure of the variables, this data set. MPG जो है वो नंबर्स हैं, साइकिल जो है वो नंबर्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स होंगे, कुछ नंबर्स हो सकते हैं. So it is showing us the structure of data set. Okay. Now, for example, I want the summary of this data set. अब summary क्या होगी? Summary में वो हमें मीन दे देगा, मीडियन दे देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा, quartile range, everything. So summary of empty cars. Let me run this command. Can you see? In the output window console, it has given Yes, ma'am. all the summary. Minimum value क्या है, maximum value, हर वेरिएबल का अलग अलग दे दिया. इसमें मिनिमम क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है, मीडियन, मीन, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम, एवरीथिंग ऑफ एवरी समरी दे दी उसने हमें. ओके,
अच्छा, ये आउटपुट जो है ये ऐसे ही आता है इसमें AS फॉर्मेट में, ठीक है। वी कैन कॉपी एंड पेस्ट दिस आउटपुट। आउटपुट कम्स इन 2 फॉर्म्स। आउटपुट अगर हम ऐसे वाला कुछ कमांड दे रहे हैं तो उसका आउटपुट यहाँ आता है, बट अगर हम कुछ प्लॉट या ग्राफ बना रहे हैं तो उसका आउटपुट 4th विंडो में भी आता है, बट इसका एज सच कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ let me plot something. Let's see plot कैसे करें, ठीक है। प्लॉटिंग के लिए आई एम गिविंग कमांड प्लॉट, ठीक है। प्लॉट के बाद मेरे को प्लॉटिंग चाहिए फॉर एग्जाम्पल 2 वेरिएबल्स की, ठीक है। अब वो कैसे देते हैं हम, लेट्स सी, दिस इज इम्पोर्टेंट। प्लॉटिंग किस किस की करनी है, पहले तो हमें उस डेटा फाइल का नाम देना पड़ेगा। क्या डेटा, हियर राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन ओनली 1 फाइल, तो हमारे पास एम्प्टी कार्स ही है। अगर बहुत सारी फाइल्स होती है देन वी हैव टू सी कि हमें कौन सी फाइल का देना। एम्प्टी कार्स, अब एम्प्टी कार्स में डिड यू सी देयर वर 11 वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं उसमें से सिर्फ 2 वेरिएबल्स का चाहती हूँ प्लॉट करना, ठीक है। सो अब एम्प्टी कार इज द एंटायर डेटा सेट, ठीक है। मैम यस, मैम हम एम्प्टी कार्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फाइल का नाम एम्प्टी कार्स था। देखो हम डेटा, तो कुछ जैसे अगर मतलब एग्जाम में इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा या मतलब कोई चेंजेस वगैरह आ सकते अभी सिखाती हूँ कैसे आएगा। ये हम कह रहे हैं? हैं ओके। कि हम ये डेटा जो उठा रहे हैं ये ऑलरेडी इसके अंदर ही है, आर के अंदर। हम आर के डेटा सेट पे ही काम कर रहे हैं। वी आर जस्ट लर्निंग द कमांड्स राइट नाउ, ठीक है। डेटा हमने उठाया एम्प्टी कार्स विच वाज देयर इन द आर इटसेल्फ। व्यू करा, ये आ गया, ठीक है। हेड करा तो फर्स्ट 6 रोज दिखा दिए उसने। कॉल नेम्स, उसने कॉलम के नेम्स बता दिए। एम्प्टी कार्स वी आर राइटिंग इट अगेन, क्योंकि हम इस डेटा सेट का पे काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे और भी बहुत सारे डेटा सेट्स खुले होते तो मुझे जिस डेटा फाइल का कॉल नेम चाहिए मैं उसको डाल देती। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव फाइल अभी आगे करेंगे, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू प्लॉट, कैसे प्लॉट्स बनाते हैं हम। अब देखो प्लॉट लिखा मैंने, मुझे प्लॉट बनाना किसका है, मुझे प्लॉट बनाना है एम्प्टी कार्स वाले डेटा सेट में से 2 वेरिएबल्स का, ठीक है। ये एम्प्टी कार्स का डेटा सेट है, इसके कितने सारे वेरिएबल्स हैं, 11। MPG, साइकिल, डिस्प्ले, HP, ये सब है। मुझे किसी 2 का डेटा प्लॉट बनाना है। सो एक तो हो गया जब मुझे ये डेटा सेट चाहिए। अब इस डेटा सेट के अंदर से मुझे 2 कॉलम्स चाहिए, तो उस अंदर से कॉलम उठाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको देते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी, डोंट वरी। सॉरी, यहाँ पे नाउ $साइन, जैसे ही आप $साइन डालेंगे, ठीक है, व्हाट विल हैपन, आपके जितने भी वेरिएबल्स उस वाले डेटा फाइल में है वो सारे आ जाएंगे। अभी हमने देखा था MPG था, ये था, डिस्प्ले था, HP था, थे ना, डू यू रिमेम्बर, ये थे कि नहीं थे। यस मैम थे। नहीं। अब मुझे किसी भी 2 का फॉर एग्जाम्पल मैं, तो ये आएगा कैसे, जब मैं $साइन डालूंगी। पहले मैंने लिखा एम्प्टी कार्स, जो भी मेरी डेटा फाइल का नाम था, उस फाइल में से मुझे कुछ उठाना है, कोई पर्टिकुलर कॉलम, तो मैं कैसे करूंगी, $साइन डाल के। MPG का करना है, ठीक है।
एंड कॉमा, फिर से मैं लिखूंगी एम्प्टी कार्स का ही एक और वेरिएबल चाहिए मुझे जो कि डिस्प्ले कर ले। मेरे को इन दोनों का प्लॉट बनाना है, ठीक है। व्हाट आई विल डू, आई विल run this command. Can you see in the fourth window? Can you see this fourth window? We have got Yes, ma'am. plot which says empty cars and MPG. हमने इसका प्लॉट बनाया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्लॉट एम्प्टी कार्स में से HP कॉमा, फिर से अच्छा ऐसा भी हो सकता है आप एक वेरिएबल इस फाइल का ले रहे हो और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फाइल दूसरी होती जिसका नाम होता फॉर एग्जाम्पल आइरिस, ठीक है। अभी हम आइरिस का एग्जाम्पल करते हैं, हमारे पास वो होता या एयर क्वालिटी होता, तो हम उस वाली फाइल का नाम डालते और उसमें से वेरिएबल चूज करते अगर हमें उसका चाहिए होता। एम्प्टी कार्स डॉलर वेट, ठीक है। नाउ इट विल, आई विल रन माई कमांड। अब उसने मुझे किसका दे दिया प्लॉट, एम्प्टी कार्स एंड वेट। This you will find in the fourth window under plot. Okay, now can you do one thing? इसका एक बारी you can take a picture as of now and try it on some other data. ट्राई करें एक और डेटा पे। अब आप काम कर, अब आप लोग करो डेटा। डेटा फॉर एग्जाम्पल एयर क्वालिटी का उठा लो, एयर क्वालिटी, ठीक है। ये ऑलरेडी बिल्ट इन डेटा है। आई विल रन दिस कमांड। अच्छा एक बात देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपने एक कमांड नहीं रन करी और दूसरी दे दी, नाउ आई एम राइटिंग, मैंने डेटा एयर क्वालिटी लिया, व्यू, अब मैं उसको देखना चाहती हूँ उस फाइल को, ठीक है। व्यू एयर क्वालिटी, नाउ आई एम रनिंग द सेकेंड कमांड। आ गई, बाई चांस आ गई, बट कई बार आपको एरर दिखा देगा, ठीक है। वो एरर इसलिए दिखा देगा कि आपने फर्स्ट कमांड नहीं रन करी हुई। नाउ कैन यू सी दिस फाइल? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम इस फाइल में क्या क्या कर सकते हैं। अगर मैं इसको हेड दूंगी कमांड, हेड में क्या करेगा ये, what what will it give in heads? First 6 rows। अब देखो अगर मैं यहाँ पे हेड लिखती हूँ और एयर क्वालिटी का, तो वो मुझे एयर क्वालिटी की फर्स्ट 6 रोज देगा। अगर मैं यहाँ पे हेड में लिखती हूँ एम्प्टी कार्स,
तो वो मुझे एम्प्टी कार्स की फाइल का देगा. नाउ यू गॉट द डिफरेंस व्हाई आई वाज राइटिंग एम्प्टी कार्स अगेन एंड अगेन. देखो मैंने यहाँ लिखा यस मैम. हेड एयर क्वालिटी. अब वो मुझे एयर क्वालिटी के हेड्स देगा. क्या क्या है? ओजोन, सोलर, आर, विंड, टेम्परेचर, मंथ एंड डे. ओके. नाउ लेट्स से मैं यहाँ पे कमांड देती हूँ हेड. अब मैं इसको एम्प्टी कार्स का बोल देती हूँ. देखो मैंने गलती से लिख दिया था एंटी कार्स, और अगर मैं उसको रन कर देती ना तो वो मेरे को एरर दिखाता. कह रहा है कि एंटी कार्स ऑब्जेक्ट इज नॉट फाउंड. So that is why I would always suggest कि try to take from the drop down menu. देखो एम्प्टी कार्ड, क्योंकि वो मेरा, मैं उस पर काम कर रही हूँ, मेरी फाइल ऑलरेडी है वो, तो मेरे को दिखाएगा. अगर मैं एम्प्टी कार्ड्स का बोलती हूँ तो वो मुझे एम्प्टी कार्ड्स के हेड दिखाएगा. राइट. नाउ if I write the call names अगर मैं लिखती हूँ, so what will it give me? कॉल नेम से क्या देगा वो मुझे? कॉलम्स. कॉलम के नेम्स. मुझे किस किस फाइल के कॉलम के नेम्स चाहिए? एयर क्वालिटी के. सो आई एम रनिंग दिस कमांड. इसने मुझे कॉल नेम्स दे दिए. इफ आई एम if I want call, no, if I want summary में क्या देगा? अच्छा, मुझे एक पर्टिकुलर उसकी ही समरी चाहिए तो वो भी आ जाएगी. मुझे पूरे एयर क्वालिटी की चाहिए तो पूरे एयर क्वालिटी की आ जाएगी. आगे मीन, मीडियन, सारे वेरिएबल्स का दे दिया उसने. समरी ऑफ ऑल वेरिएबल्स. ओके. नाउ if I want to plot something here, plot क्या लिखूं पहले? Can anybody guide me? What should I write in plot? मुझे प्लॉट करना है एयर क्वालिटी के डेटा से, और एयर क्वालिटी में मुझे करना है फॉर एग्जांपल विंड एंड टेम्परेचर. ठीक है. सो आई विल, how will I choose the particular column from air quality? I will put the $sign. Wind, कॉमा, और किसका चाहिए मुझे? एयर क्वालिटी में ही temperature. Okay. Now I'm running this. Can you see it has given me a plot of air quality and temperature on y-axis, air quality Yes, and ma'am. x-axis. Can you try a file data iris? देखो जब हम ऐसे उठाते हैं ना, वो अपने आप ही कोट्स में दे देता है, अपने आप ग्रीन कर देता है, अपने आप ब्रैकेट्स दे देता है. अदरवाइज हम जब ड्रॉप डाउन मेन्यू से नहीं उठाते, तो इवन इफ वी आर मेकिंग एनी सिंगल मिस्टेक, लाइक इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करना भूल गए, ब्रैकेट क्लोज करना भूल गए, ए बड़ा लिख दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं करता कमांड. फॉर एग्जाम्पल मैं आइरिस से ये हटा दिया मैंने. अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वो किया, मैनुअली डाला, ठीक है,
आगे व्यू नहीं, वो उसने कमांड ही पूरी नहीं करी। आप देखो नीचे व्यू ही आ रहा है, व्यू ग्रीन में ही आ रहा है। So that means it has not executed the command. Now it has executed. I am I'm giving you 5-10 minutes. Just try the same thing on data, Iris, or any other data which is available in this R, and we will connect back in another 5 minutes with the now. Right now, till now, we have done two things. One is we have tried entering data manually. And the second thing was we tried fetching the data from the R library itself. Okay. Now, the third way to enter data in R is through importing a file which is saved in your system. Okay. That is the third way. We will do it afterwards. First, I want you to practice this exercise. Okay. Okay. So, before we go to the third part of importing data set from the system, one thing we need to do is we have to install some packages. Okay, because I just forgot that I skipped that topic. Installing packages is important because at times few commands doesn't work. Okay. For example, to make the Excel file run, CSV file run, we need some uh, packages which are sometimes not. मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा. Okay, I'll just do that. Which are sometimes not installed in your system. So I will just. Now, is it visible? I will be sending you this script also, जो भी हम कर रहे हैं. You will get it. बट इसमें पूरा नहीं लिखा हो सकता, थोड़ा बहुत. This part. Okay. Now, installation of packages. Why is it important? It is important to make few commands run on R. कई बार आपको एरर दिखाएगा कि ये कमांड नहीं रन कर सकते, ये वाला पैकेज इंस्टॉल नहीं. So these are some basic packages which we need. Can you, as of now, can you click a photo of this? And I will send you this document. So there are two options to install these packages. One is point and click method, and another is writing or giving the command manually. Okay, so I am taking first the base package. Okay, coming to RStudio. Coming to RStudio. Come to the fourth window, packages. ठीक है, अब देखो इसमें ना पैकेजेस में आप ये सारे पैकेजेस, एक होता है पैकेज को इंस्टॉल करना, दूसरा स्टेप होता है उस पैकेज को रन करना. ठीक है, आप यहाँ पे जो पैकेजेस देख रहे हैं, these all packages are installed in R,
बट जिसके आगे जिसमें चेक बॉक्स में टिक नहीं है ना, वो अभी तक रन नहीं कर रहा है। ठीक है, टू मेक देम रन वी हैव टू टिक दिस चेक बॉक्स। सो फर्स्ट पैकेज हमारा कौन सा था? बेस। बाय चांस मेरे इसमें बेस जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड भी है और वर्किंग भी है, बट आई विल शो यू हाउ टू डू इट। You will click on install. When you will click on install यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था। First you will go to the fourth window. In fourth window you will go to the packages. Then only you will get this. Packages पे click करके this window will pop up, and in the center box you have to write the name of the package. You can write base. I will try to write something else. Let me write this LM test. I think this is not working in my system. LM test. ठीक है, आप base लिख लो. So what you will do after this LM test, आपने यहाँ पे पैकेज का नाम लिख दिया, इसको करोगे आप इंस्टॉल. ठीक है, अब यहाँ पे जाके देखो, सर यू विल गो टू सर्च बॉक्स या ऐसे नीचे आके एल पे आके. ठीक है, हमने जो सा किया है, कौन सा किया मैंने? LM टेस्ट. देखो यहाँ पे आ गया. कैन यू सी दिस LM टेस्ट? Why this is required? This is for testing linear regression models. अगर मैं linear regression model रन करती और ये पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है तो वो मेरी कमांड एग्जीक्यूट ही ना होती. सो फॉर दिस आई हैव टू मेक दिस कमांड रन. पहले तो इंस्टॉल किया, इंस्टॉल हो गया. अब इसको रन करने के लिए क्या करूंगी? आई विल क्लिक दिस चेक बॉक्स. देखो यहाँ पे you will see everything. Loading required package zoo. Attaching package zoo the following package B. zoo देखते हैं. मेरा ऑलरेडी जब वो कह रहा है कि पैकेज जो है वो मास्क ऑलरेडी है उसमें. ओके, वर यू एबल टू इंस्टॉल बेस? Similarly, you have to install all of them. Read Excel, Read R, TPLYR, TidyR, Tibble. Let me try this Tibble. I think it is not there. It is there. Tibble मेरा already है. I just have to click it. ठीक है, सारे के सारे ये हमें पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं. ओके, बेस, रीड एक्सेल, रीड आर, DPLYR, TidyR, Tibble, Tidyverse, ggplot2, LM टेस्ट, कार. आई थिंक कार भी नहीं है मेरे इसमें. हाउ आर यू गोइंग टू इंस्टॉल? इंस्टॉल पे क्लिक करके इसमें पैकेज का नाम लिखेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, वो इंस्टॉल हो गया. ठीक है, अब इसमें देखेंगे कार इंस्टॉल हो गया. कंपेनियन टू अप्लाइड रिग्रेशन, ये भी रिग्रेशन का है. सो इसको टिक कर देंगे तो ये रन हो जाएगा. ठीक है, नाउ देयर इज अनदर वे टू इंस्टॉल these packages. Okay, let me try this stats package. Okay, first method, I think it is clear. How do we do it? We do it from the fourth window. Okay, by clicking on install and then ticking the checkbox. Another method is by giving the command. अब मुझे stats करना. ठीक है, for example, what I will do, मैं यहाँ पे लिखूंगी install dot packages. Why is it not coming?
इंस्टॉल, देखो नहीं आ रहा था, आई जस्ट डिलीटेड इट एंड ट्राइड अगेन। इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, कौन सा पैकेज मुझे करना है? स्टैट्स। ठीक है, इसमें से जो भी करना है वो आपको नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टैट्स 19 कर रही हूँ, ठीक है। नाउ इसको रन करेंगे कमांड को। कैन यू गिव मी 2 minutes, आई एम टेकिंग क्लास, जस्ट ओके। सो द अदर वे इज, अगर आपको एक भी आ गया है तो इट्स ओके, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अनदर वे। कई बार कुछ काम नहीं करता है तो इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, जिस पैकेज को इंस्टॉल करना है उसको रन करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे, उसको रन करने के लिए लिखेंगे हम लाइब्रेरी। कौन सा? हमने उसमें दो चीजें करी, एक बार इंस्टॉल किया, एक बार रन किया। इसमें भी इंस्टॉल करेंगे और रन करने के लिए लिखेंगे लाइब्रेरी, दिस वन। ओके, आई विल प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। अगर अब आप यहाँ पे देखोगे स्टैट्स 19, स्टैट्स ऑलरेडी था, स्टैट्स 19 हमारा रन हो गया। उस टाइम रन नहीं हुआ था, देखो ऑटोमेटिकली क्लिक हो गया है यहाँ पे, ठीक है। पैकेजेस इंस्टॉल करने आ गए सबको? टू मेथड, यस मैम। एक और ट्राई कर लेते हैं कैसे हम करते हैं पैकेज इंस्टॉल। यहाँ वाला मैंने दो करके दिखा दिए थे, लेट्स ट्राई दिस वन। इंस्टॉल, सॉरी, यहाँ पे स्क्रिप्ट विंडो में इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, इसमें हम करके देख लेते हैं। ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स ग्राफिकल एमसीपी, ठीक है। नाउ आई एम रनिंग दिस। अभी ये इंस्टॉल हुआ है, इसको रन करने के लिए क्या करेंगे? लाइब्रेरी एंड इसका नाम लिख देंगे ग्राफिकल एमसीपी। यहाँ पे देखें ग्राफिकल एमसीपी, सर्च विंडो में देखो ग्राफिकल एमसीपी, ग्राफिकल मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर्स, इस पे ऑटोमेटिकली टिक भी हो गया, पहले इंस्टॉल हुआ और टिक हो गया। सो दिस इज द वे वी डू इट, okay. Now I am coming to the third part, how to import data sets. This is very important because we will be working majorly on that part only, okay. Come to the third window, environment. Can you see import data set here? Yes, ma'am. We will click on this import data set. जो मैंने आपको फाइल भेजी है वो एक्सेल की फॉर्म में है या CSV है? एक्सेल है आई गेस, Excel है मैम। एक्सेल है। सो आई एम इम्पोर्टिंग फ्रॉम एक्सेल, ठीक है। इट इज आस्किंग मी द पाथ, ब्राउज करके इट वॉज देयर ऑन माई डेस्कटॉप थ्रू डिस्क्रिप्टिव
I think the name of the file was descriptive. This was the file. आपको आपकी पता होगी कहाँ पे है, वहां से उसको पाथ दे देना, ओपन, आ गई। ठीक है, अभी हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। हम देखो, अगर आप वो देखोगे एक्चुअल फाइल तो वो ऐसी ही है, SN, वेट, हाइट, एज, जेंडर, ट्रीटमेंट। ओके, नाउ import options, it says name। इतने बड़े नाम को ना मैं चेंज कर रही हूँ और मैं इस फाइल का नाम रख रही हूँ। अच्छा देखो, बहुत केस मैंने बताया कि R इज वेरी केस सेंसिटिव। अगर मैं यहाँ पे D कैपिटल डाल रही हूँ और वहां पे अगर मैं उसको रिट्रीव स्मॉल d से करना चाहूंगी तो वो नहीं होगी। सो आई हैव टू रिमेम्बर दैट आई एम पुटिंग कैपिटल D हियर, डेटा फाइल। मैंने इसका नाम क्या रख दिया फाइल का, डेटा फाइल। यहाँ पे चेंज होगा, वहां पे नहीं होगा बेस में। ठीक है, शीट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट शीट जब होती है, जैसे अगर आप एक्सेल देखें, आई जस्ट शो यू एक्सेल, दिस इज द सेम फाइल आई एम ट्राइंग टू import, है ना। इसमें देखो, अगर आप देखोगे तो देर कैन बी मल्टीपल शीट्स इन एक्सेल फाइल, है ना। शीट 1, शीट 2, शीट 3, इसमें एक ही है। तो होता क्या है कि उसमें शीट डिफॉल्ट, तो अगर ये ऐसे रहता है तो उसमें वो शीट फर्स्ट वाली ही उठाता है बाय डिफॉल्ट। शीट 2 में कोई और डेटा हो सकता है, शीट 3 में कोई और डेटा हो सकता है ना। बाकी सब रहने दो, फर्स्ट रो एज नेम्स वो रहने देना, क्योंकि अगर वो नेम नहीं हो, ये क्लिक नहीं होगा तो फर्स्ट रो को भी डेटा पढ़ लेगा वो। ठीक है, नाउ आई एम इंपोर्टिंग। समझ में आया तीसरा वे कैसे इंपोर्ट करते हैं। Yes, ma'am. इंपोर्ट डेटा सेट पे जाके जो भी फाइल का वो है, नेचर है, एक्सेल से उठाई हमने तो एक्सेल किया, उसके बाद यहाँ पे ब्राउज करके डाला नेम का, हमने डेटा सेट रखा था, डेटा अच्छा अभी कुछ है नहीं इसलिए डेटा सेट है। हमें जो नाम Yes, देना ma'am. है फाइल का हम दे सकते हैं, एंड वी कैन इंपोर्ट। कैन यू सी टिल नाउ we have worked on 3 files under script writer. One is data file which I have imported from my laptop. Second is air quality which I fetched from R itself, and similarly empty cars. So 3 files पे अभी तक हमने काम किया। So here comes to the end of data set. Okay, importing data set or working on data set. Now we are moving to another part which is called handling data set. अब इसको handle कैसे करना है हमने? Is there anybody who was able to import this file here? कोई कर पाया अपनी Yes, फाइल को ma'am. import? I'll give you Yes, ma'am. time. Yes, ma'am. ठीक है? Now I am coming to my first, देखो यहाँ पे ये open है ना files. I'm coming to my first window where I was writing. I can take a new file also. चलो मैं new file ही ले लेती हूँ, एक और खुल गई। Okay. इसको मैं नाम दे दूंगी, हम इस पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं आपको एक और चीज भी समझा रही हूँ। Just keep looking at my script writer. I am writing hash handling
data. Okay. Now I have written handling data. अगर मैं इसको रन करूंगी ना तो ये रन नहीं होगा. क्यों नहीं रन होगा? देखो यहाँ पे आ गया. इट विल इनवैलिड का. जब मैम वो स्टेटमेंट की तरह रिकॉर्ड हो रहा है। यस, जैसे ही मैंने इसको हैश लगा दिया, इट इज यूजिंग इट एज अ स्टेटमेंट, एज अ कॉमेंट. मैं किसी भी चीज को हेडिंग देने के लिए कि मैं अब इसमें क्या करने वाली हूँ, तो मैंने उसको हेडिंग दी और मैंने उस हेडिंग के आगे हैश लगा दिया. दिस कोड विल नॉट रन इन आर, क्योंकि हैश मीन्स कॉमेंट. दिस इज यूज फॉर गिविंग अ कॉमेंट ओनली, फॉर हेडिंग ओनली, कि मैं उसको ऐसे यूज करूंगी. नाउ आई विल बी learning handling data. That is why I put a heading handling data. Okay. Now, first, how to handle data. सबसे पहले अगर मेरे डेटा में कोई let me see. Can you see this data? यहाँ पे serial numbers जो है वो it is occurring twice. यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है. 1 2 3 4 1 2 3 4, यस मैम। है ना? So if I want to delete any particular column, okay, what do I need to do? I'm going again. Let's say I want to delete this SN column. So मैं क्या करने वाली हूँ? Handling data में ही I'm just giving a command, delete SN column. ये डन नहीं करेगी क्योंकि मैंने इसको हैश में, देखो ग्रीन कलर में आता है ये. ठीक है. अब कैसे करना है इसको? सबसे पहले मैं उस फाइल का नाम दूंगी जिसमें से मुझे इसको डिलीट करना है. मुझे डेटा फाइल में से करना है, एयर क्वालिटी में से करना है, या एम्प्टी कार्स में से? डेटा फाइल में से करना है. सो Yes, ma'am. अच्छा, अगर आप देखो तो मैंने जो उसका नाम रखा था वो कैपिटल डी रखा था. ठीक है. अगर मैं इसको अब ऐसे करती हूँ, डेटा फाइल आ तो रहा है, लेकिन इसमें से ड्रॉप डाउन ऑप्शन में से ठीक उठाऊंगी तो करेक्ट आंसर देगा. बट अगर ड्रॉप डाउन में से नहीं उठाऊंगी और ऐसे डेटा फाइल लिखूंगी, सो इट माइट नॉट गिव मी द करेक्ट आंसर. आगे नहीं प्रोसीड. सो जैसे ही डेटा फाइल आया, ये दिखाने भी लग गया कि यही वाली है. इट जस्ट शोज द ग्लिम्स डेटा फाइल. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे एक कॉलम डिलीट करना था. जो कॉलम डिलीट करना था, सबसे पहले मैंने उसका फाइल ली. कौन सी फाइल में से करना है? बिकॉज राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन 3 फाइल्स. ओके. डेटा फाइल. After putting the name of the file, I want to choose a column. Anybody remembers how do we choose a column from a particular file? $. Very good. Dollar sign. जैसे ही डॉलर साइन मैंने इसमें किया, तो मेरे को डेटा फाइल के अंदर से वो दिखाने लग गया कि कौन कौन से कॉलम्स हैं. है ना? ये कॉलम्स है. सो आई एम टेकिंग SN. ठीक है. अब मुझे इसको कहना है कि SN जो है उसको डिलीट कर दे, और इसका कमांड होता है लेस देन डैश. अच्छा, मैंने आपको आई थिंक आई हैव फॉरगॉटन टू टेल यू बिफोर दिस, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं. असाइनमेंट ऑपरेटर्स मीन्स कि या हम इक्वल टू, जैसे x इज इक्वल टू 5, सो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. या तो हम उसको x इज इक्वल टू 5 कह दें, दूसरा होता है इक्वल्स टू को हम r में लेस देन और हाइफन से भी रिप्रेजेंट करते हैं. दिस सेकेंड वे, लेस देन हाइफन, इज अ ट्रेडिशनल वे एंड द प्रेफर्ड वे. उसको हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि इक्वल टू कई बार हम आगे जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है. सो इट इज बेटर टू ऑलवेज यूज
लेस देन और हाइफन साइन। ठीक है, ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। बोथ आर सेम। ठीक है, मैंने इसमें भी x इज इक्वल टू 5 लिखा है और इसमें भी x इज इक्वल टू 5 लिखा है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू डिलीटिंग द कॉलम, डेटा फाइल $SN, ठीक है, इक्वल्स टू नल। इसमें डिलीट करने के लिए हम लिखते हैं कैपिटल में नल। जैसे ही यहाँ पे होगा, देखो यहाँ से पिक किया और ये ब्लू कलर का आ गया। इसमें ना कलर्स का बहुत रोल है, कई बार कलर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो कई बार आंसर भी नहीं देगा वो। ठीक है, इसमें क्या क्या आता जा रहा है? वार्निंग मैसेज, डू ट्राई कैच रिटर्न। अच्छा, वो पहले वाले का कह रहा है कि इनकम्प्लीट है। ओके, सो आई एम रनिंग दिस कमांड नाउ। I'll try to do it again. Data file $. Oh, it has already been removed. देखो, हमने यहाँ पे डेटा फाइल $SN किया था नल। ठीक है, मतलब मैंने डेटा फाइल में से SN कॉलम को रिमूव कर दिया था। ठीक है, अच्छा, ये जो रिमूव किया है ये R में रिमूव हुआ है, ये बेस फाइल जहाँ पे मेरी सेव है एक्सेल में लैपटॉप में, वहां पे रिमूव नहीं हुआ है। ओके, वहां पे रिमूव नहीं होता है। जस्ट अ मिनट। Okay, now I want to see my data file. Okay, data file देखने के लिए क्या करूंगी? View data file. I'm running this thing. Can you see the SN column has been removed? देखा आपने SN कॉलम रिमूव हुआ? प्लीज रिपीट। मैम प्लीज रिपीट। हमने क्या किया? Yes, ma'am. SN कॉलम को रिमूव करने के लिए हमने नल कमांड दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैंने क्या लिखा? डेटा फाइल, जिसमें से डिलीट करने, उसमें कौन सा कॉलम डिलीट करना है, $साइन डाल के नल। और फिर अच्छा, एक बात, एक ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस डेटा सेट एयर क्वालिटी, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन हाउ डू वी डिलीट एनी कॉलम। इन दिस एयर क्वालिटी डेटा सेट, I want to remove this day column. Can you see there is a day column? है ना? अब मैं क्या करूंगी? डेटा फाइल, नहीं डेटा फाइल नहीं है, उसका नाम क्या है? एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी फाइल में से डे कैसे चूज करूंगी? $साइन पुट करके डे। ठीक है, नाउ आई वांट टू रिमूव दिस कॉलम। इक्वल्स कैसे लिखते हैं? लेस देन हाइफन एंड नल। ओके, नाउ आई एम रनिंग दिस कमांड। ओके, मैंने रन कर दी। नाउ माय from my air quality file, this data column should have been removed. I want to see whether it has been removed or not. I will say view air quality.
Run. Can you see? The day column has been removed. Is it clear? कैसे रिमूव हुए? नल मैम कमांड, नल फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, नाउ इन माय डेटा फाइल, देखो इसका ना W स्मॉल लिखा है, H स्मॉल लिखा है, A स्मॉल लिखा है. आई वांट टू change the names of these columns. How am I going to change the name of these columns? Let us see. ठीक है, अभी तक हम delete कर रहे थे. Now I am putting a hash and I am writing changing the names of columns in my data file. ठीक है, इसको कैसे करेंगे? मैंने अभी हैश कमांड हैश दिया, दैट मीन दिस इज अ स्टेटमेंट. आई कैन नॉट रन दिस कमांड. ओके, आई विल राइट कॉल नेम्स. ठीक है, कॉल नेम्स किसके? डेटा फाइल के. मैंने लिखा कॉल नेम्स किसके कॉलम, बताना पड़ेगा ना, डेटा फाइल के कॉलम, है ना. अब इक्वल्स टू मतलब ये रख दो, जो भी मैं नाम रख बोलूंगी वो नाम वो वाले आ जाएंगे. ओके, नाउ कॉल नेम्स किसके? डेटा फाइल के. अब क्योंकि ये डेटा फाइल जो है, दिस दिस इज अ वेक्टर. आई एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी कि वेक्टर जो होता है उसके लिए हम सी कमांड यूज करते हैं, कंबाइन, है ना. तो फर्स्ट कॉलम का मैं नाम दे रही हूँ. अच्छा, यू हैव टू पुट एवरीथिंग इन इन्वर्टेड कॉमर्स. पहले था वेट. नाउ आई वांट टू गिव इट नेम एज W. आई एम राइटिंग एज, देखो ये ग्रीन में आ जाएगा. जब तक ये ग्रीन में नहीं आया मतलब आपका उसने पिक नहीं किया. ओके, नाउ सेकंड आई वांट हाइट इन्वर्टेड कॉमर्स में. थर्ड आई वांट एज. देखो एज नहीं आया, दैट मीन्स आई विल राइट अगेन. पहले मैं इन्वर्टेड कॉमर्स डालूंगी, अब एज लिखूंगी. ठीक है, जेंडर, देखो नहीं आया था, फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स पहले डालूंगी, जेंडर. ओके, लास्ट हमारा क्या था? ट्रीटमेंट. फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैंने इन सब का सिर्फ कैपिटल किया है. लास्ट वाले का आई वॉन्ट टू चेंज द नेम इटसेल्फ. मैंने इसको नाम दे देती हूँ ग्रुप. ठीक है, क्या कमांड दी मैंने कि कॉलम नेम्स को किसके? डेटा फाइल के. सी कमांड होती है जब हम बहुत सारे इकट्ठे लिखते हैं. सिर्फ वेट होता तो फिर हमें सी लिखने की जरूरत नहीं थी. ठीक है, कंबाइन कमांड होती है ये. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कमांड. ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा रन हुई कि नहीं? ठीक है, आई विल अगेन सी व्यू. किसको देखूंगी? अपनी डेटा फाइल को. वैसे वहां से भी दिख जाता है साइड से. Can you see this new data? I mean the data file, existing data file. First column का name क्या था? W was written small, H was written small, A was written small.
है ना। लास्ट ग्रुप का नाम क्या था? ट्रीटमेंट। मैंने उसका नाम कर दिया था ग्रुप। कैन यू गेट मी सम वाटर? कैन यू सी इट हैज चेंज्ड द नेम्स। ओके, सो ये अभी हमने क्या कमांड करी? चेंजिंग द नेम्स ऑफ कॉलम्स इन डेटा फाइल। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ आई वांट टू, बस एक और सिखा रही हूँ, ज्यादा नहीं सिखा रही। नाउ आई वांट टू अवॉइड मिसिंग वैल्यूज। अगर मेरे डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू है, मुझे उसको हटाना है। थैंक यू बेटा। ठीक है, now I remember there was some data where missing values were there. Air quality, huh? Can you see air quality file? Some data at some places NA is written. NA means not available. These are missing. Yes, ma'am. How I can remove these values so that I can work. देखो, जब भी आप बड़े डेटा पे, बिग डेटा पे काम करोगे, आपके पास मिसिंग वैल्यूज होंगी, है ना। उन मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करना comes under data handling only. So now I will remove these. कैसे रिमूव करूंगी? I will write, कौन सी फाइल है मेरी वो? एयर क्वालिटी, है ना। एयर क्वालिटी में से फॉर एग्जाम्पल मैं ओजोन में से अभी हटाना चाहती हूँ। ठीक है, आई विल प्रेस डॉलर ओजोन। ठीक है, नाउ इक्वल्स टू ऐसे लिखते हैं, लेस देन हाइफन। नाउ द कमांड इज na dot omit. na dot omit। ठीक है, क्या कमांड दी मैंने? एयर क्वालिटी में से ओजोन कॉलम का na omit। omit कर दो वैल्यूज। फिर से दोबारा नाम देना पड़ता है, एयर क्वालिटी डॉलर ओजोन। ठीक है, इसको हम मिसिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट फिर से और भी करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स राइट नाउ। Let us see. इसलिए रिमूव नहीं करा इसने, because there are another commands for removing the row, removing the particular column, or replacing the particular column with some value. So we can do that. But I think as of now, because that is going to be a little bigger concept, so I preferably not to take it today, because today we will wind up the class. So yes, Harsh, पूछो। मैम रिमूव नहीं हुआ, वो नॉट अवेलेबल। नहीं हुआ ना? हाँ जी, वही वही मैं आपको बता रही हूँ। बिकॉज उसमें ना ऑप्शन होते हैं कि वो पहले हमें बताता है कि वी कैन सी हाउ मेनी NAs आर देयर, देन वी हैव टू गिव कमांड उन NAs को। हमें पूरी रोज को ही डिलीट करना है, या हमें उस
एन वाली पर्टिकुलर वैल्यू को किसी और वैल्यू से रिप्लेस करना है, फॉर एग्जांपल एवरेज से, या कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम दे रहे हैं उससे रिप्लेस करना है. सो इट इज अ लिटिल concept we have to go in depth. So I am since we have to wind up the class now, so I'm not going into that missing value wala concept. I'll just show you one more concept of summary one. I'll take up that concept tomorrow so that everything will come with it. कि उसको हमें रिप्लेस कैसा करना है. देखो, अगर आप देखो, अगर इन वैल्यूज को हटा देंगे तो क्या डालेंगे? ये तो पूरा कॉलम ही हटाना पड़ेगा ना. बाकी वैल्यूज का क्या होगा? So that is why it is not working. So I am just doing a last summary of my data file. Okay. Summary of my data file. उसने मुझे summary दे दी. सारे वेरिएबल्स का वेट, हाइट, एज, जेंडर का, सबका मीन, मोड, एवरीथिंग. ठीक है. अगर मुझे समरी किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की चाहिए तो मैं वो भी कर सकती हूँ. आई वॉन्ट द समरी ऑफ ओनली एज. नहीं, क्या था हमारा उसमें? एज तो है. दैट फाइल मैम $, डाटा फाइल. age from data. Yes. Data file. क्योंकि फाइल्स बहुत सारी है ना. $, एज. उसने मुझे सिर्फ एज की दे दी. Similarly, if I want for, thank you whosoever helped me, data file $, I want summary of height. Height में कुछ दिक्कत कर रहा है. could not find function. Okay, समय लिख दिया गलती से summary की जगह. Some mistake is coming here. I think मैंने उसको drop down menu से नहीं उठाया था. Summary data file hash height. आगे height की. ठीक है. So this is how we do. At one go, if we want, we will simply write data file. If we want for particular columns, we can write this particular. अच्छा, उसमें हमने क्या क्या किए थे functions when we were doing on iris and empty cars? Summary. Yes. 10 minutes you can watch. Summary. And then view option we have already seen. But I'm not here. I'm taking class. Yes, ma'am. Plot, STRs, Plot, head, और क्या क्या? columns. Call names, है ना? all those functions. But I'm just give me 2 minutes. Okay, so this is for today. I'll just summarize what all we have done. हमने basics किया. ठीक है. उसके बाद हमने set working directory set करनी सीखी. उसके बाद हमने पैकेजेस को इंस्टॉल करना सीखा. उसके बाद हमने 3 तरह से डेटा को एंटर करना सीखा. मैनुअली, फ्रॉम R itself or from the environment, from the file which is stored in our computer. ठीक है. So 3 ways से. And then we looked into the
वी लुक्ड इनटू डेटा हैंडलिंग पार्ट। डेटा हैंडलिंग में हमने कुछ कुछ चीजें करी कि हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम डिलीट कैसे करना है, या हमें अभी मिसिंग वैल्यू हमने नहीं करा, हमें किसी कॉलम्स के नेम्स चेंज करने हैं। ठीक है, सो रेस्ट वी समरी कैसे करनी है, रेस्ट वी ऑल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास।